ओके सुनो, चलो ना listen. Listen now. There are a few points which are different from the 12th standard. Okay. So, non-profit organization A104. See, 12th standard. We have a rule of SAGG. So, in case of 12th standard, A104. So in 12th standard you followed a rule of SAGG. So SAGG में it was subscription, admission fees, donations and grants. Okay. इन चार के बारे में अगर कुछ नहीं दिया है तो they go under income. But in case of CA exams, okay, the rule changes slightly. SAGG वाला rule page 104. SAGG वाला रूल तो रहेगा ही, ओके, बट उसमें से एक आइटम है एडमिशन फीस. एडमिशन फीस इज नॉट अ पार्ट ऑफ SAGG. एडमिशन फीस के बारे में अगर कुछ नहीं दिया है तो वो कैपिटलाइज है. सो आई टोल्ड यू एट द टाइम ऑफ 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो दैट एडमिशन फीस एंड एंट्रेंस फीस आर बोथ वन एंड द सेम. प्रैक्टिकली admission fees या entrance fees are both one and the same. So in the absence of any information, you need to capitalize it. तो 12th में SAGG होता था, SAGG में से admission fee हट जाएगा. So it is basically SDG, whatever you want to remember it by. Okay? अगर कहीं ना बोले तो expenditure, income expenditure. हाँ, SDG, subscription, donation और grant. इनके बारे में कुछ नहीं दिया है तो दे आर अ पार्ट ऑफ इनकम. बट एडमिशन फीस के बारे में कुछ नहीं दिया है तो यू नीड टू कैपिटलाइज. द एक्सेप्शन टू दिस केस इज अ स्कूल और अ कॉलेज.
for a school or a college, admission fee is not one time. It is going to be every year. So they will be putting it under revenue. But normally admission fees or entrance fees, it needs to be capitalized. It needs to be capitalized. Read page 105 पे second point. Page 105, point number 2, entrance fees. It may be also known as admission fees. Can you see that? 105, point number 2. Entrance fees should be capitalized and added to capital fund for all the organizations. Mila? Yeah. Point 2. If the question gives any specific treatment of entrance fees, then it should be followed accordingly. वो तो हम वैसे भी करते हैं. But in the absence of any information, SAT जी नहीं होगा, admission fees निकल जाएगा और कहाँ जाएगा आपका capital fund में, capitalized. कुछ नहीं दिया हो तो कुछ नहीं दिया हो तो, कुछ नहीं दिया हो तो, okay? Alright then, basics are clear. What do we have in NPO? NPOs are non-profit organizations. In the question you will be having receipt and payment account. In the answer, normally we used to prepare income and expenditure and balance sheet. Now that was in 12th standard. In CA exams, you can get anything. Like, you will be given a receipt payment account normal. You will be asked to prepare either income expenditure or a balance sheet. Or you will be given an income and expenditure account in the question. And you will be asked to make a receipt and payment. Ulta. Okay? That is a possibility. Or you may be given a receipt and payment account and an income and expenditure account in the question And make double balance sheet. Or you will be given two balance sheets in the question and you might be asked to make receipt payment and income and expenditure account, or you will be given a simple raw data and you will be asked to make receipt payment, income expenditure and two balance sheets. That is also a possibility. And in every paper, NPO has appeared till date either as a 10-mark question or a 15-mark question. Okay? So 12 papers attempts हुए हैं, उसमें से कम 10 attempts में, 10 या 11 attempt में NPO है 10 मार्क या 15 मार्क के लिए. एक बार तो 20 मार्क का भी पूछ लिया गया है. So minimum 10 to 15 mark weighted chapter का होगा और होगा ही. But any cross combination, because अगर आपको concept समझ में आ गया है, तो आपको किधर से भी किधर shuffle करके पूछने तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, आपको आ ही जाएगा सब. Is it clear? समझ में आया? Now listen very carefully. All of you take question number Question number 13. Since you have done the basics, okay? Basics किया हुआ है. We go to the advanced level problems. See. टाइम पर छोड़ रहा भूल के घाट को बचा रहा है, चलेगा तो कोई घर नहीं Wait, all of you take. Sum number 13. Please be quiet. 13 sum. Read. इसलिए एनपीओ का प्रॉब्लम पढ़ लेना, पहले ही डिसाइड कर लेना अच्छे से समझ के कि क्या पूछा है प्रॉब्लम में. ओके? 13 sum. This is a receipt payment account of a Bengal sports club. Please focus.
Kolkata for the year ended 31st March 06. Now you are required to make what? So income and expenditure and balance sheet. So now for balance sheet you search for capital fund. You got any capital fund? Yeah. It's 2 lakhs. So is there any need to make opening balance sheet? No. Fundamental rule is same. अगर कैपिटल फंड मिसिंग है तो बैलेंस शीट बनाओ, दिया हुआ है तो बनाने की जरूरत नहीं है. समझ में आया? अभी स्टार्ट विद पेमेंट साइड. एक्सपेंसेस फ्रॉम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंड. The moment you see expense of any fund, फंड का फंडा याद है? Add to fund. लास्ट ईयर फंड से करंट ईयर लायबिलिटी लेके आने का, add income, subtract expenses. So this will be deducted from price distribution fund. You see on the receipt side, you find donations of price distribution fund. Why are funds treated as liability? What is the reason? Are they recurring or non-recurring? They are non-recurring receipts. Capital receipts कहते हैं. घड़ी-घड़ी मिलने वाला नहीं है. लॉजिक क्या है? घड़ी-घड़ी मिलने वाला आइटम रेवेन्यू रिसीट और उसके सामने रेवेन्यू एक्सपेंस. कभी-कभी मिलने वाला कैपिटल रिसीट और उसके सामने कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो इधर एक ही इफेक्ट, एक रिसीट पेमेंट का एक ही है, बट फंड में से माइनस, फंड में से माइनस. इज दिस क्लियर? डोंट पुट इट अंडर एक्सपेंस. Salaries, expense. Tax charges, expense. Postage, expense. Expenses on annual functions, expense. Magazines and periodicals, expense. Repairs to building, expense. Repairs are expense. How repairs are asset? Construction दिया है ना तो asset है. नया building बनाया है तो asset है. Repairs are always expense. Stationery purchase, expense. Rent and taxes, expense. 10% government securities, assets. 1405 को लिया है. What is the current year ending? 31st March 06. So एक साल I think full 12 months interest you need to calculate. Corporation taxes, expense. Cash in hand, assets. Opening cash in hand, last year asset. Subscription for 4, 5, 5, 6, 6, 7. What is the current year? 5, 6. शुद्ध है अशुद्ध है? शुद्ध है. मतलब कौन सा एडजस्टमेंट पॉसिबल है? प्लस वाला. माइनस वाला पॉसिबल नहीं है. उसमें से 5, 6 इज करंट ईयर. करंट ईयर वाला किधर जाएगा? इनकम. तो 6, 7 वाला इधर क्यों मिला है? 6, 7 वाला मतलब रिसीव्ड है. तो कहाँ जाएगा? लायबिलिटी. एक ही एंट्री है. Will you subtract it? No. शुद्ध है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है. What about 4, 5? वो कहाँ जाएगा? Last year. 4, 5 will go to last year asset. Entrance receipts. Sorry, entertainment receipts. Income. Donation for prize distribution fund. Liability है, fund में add करना है. Interest on securities. Income. Entrance fees के बारे में पढ़ो. क्या दिया है क्या कुछ? 20%. हाँ, third last line. 20% needs to be capitalized. Whereas 30% of membership fees are to be treated as revenue income. 70%. So मतलब entrance fees में 20/80 और life membership fees में 30/70. दोनों जगह जाएगा capitalized as well as income. Sale proceeds of waste paper, that's income. Miscellaneous receipts, that is also income. Legacies needs to be capitalized. ना दिया होता तो भी हम क्या करते हैं? What are legacies? मरने के बाद का donation as per the list. You are required to make income, expenditure and balance sheet. The summary of assets and liabilities as on 1405 is as follows. What is 1405? Last year asset. Last year के asset और liability है. तो सबसे पहला आइटम है buildings. तो ये कहाँ से टपकेगा? LYACY. Last year asset to current year asset. Stationery stock. Which stock is that? Opening stock. Opening stock का दो इफेक्ट क्या होगा? Add to stationery and last year asset. Logic समझा? This is last year का prepaid. Sorry, पैसे दे दिए हैं लेकिन expense belongs to this year. So you add to expense and put it under last year's asset. Is this clear? Yes. Subscription receivable. Oh my God. Receivable मतलब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 1800 दिया है, लेकिन इधर कितना दिया? 800 दिया.
तो 1000 अभी भी मिलना बाकी है। तो वो ये ईयर में ऐड होगा ना। हाँ। करंट तो लास्ट ईयर एसेट में कितना दिखाओगे? 1800। इसमें से 800 मिला है तो करंट ईयर एसेट में कितना जाएगा? 1000। ये 1000 हुआ स्टिल इन अरियर्स, ये 1000 हुआ स्टिल इन अरियर्स। इज दिस पार्ट क्लियर? देन वी हैव cash of 17,200. 2fx or 1? Why? What is that cash of 17,200 opening balance? Just verify it. You find it in your receipt side. 17,200 is your opening balance. Mila? Hello? Price distribution fund. कहाँ से टपक रहा है ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन? लास्ट ईयर. So LYL से आएगा CYL. लास्ट ईयर लाइबिलिटी से करंट ईयर लाइबिलिटी और उसका इनकम ऐड और एक्सपेंस सब्ट्रैक्ट. देन द कैपिटल फंड इज 2 लाख. LYL to CYL. The club had 450 members each paying an annual subscription of 100 each. Why have they given this data 450 to 100? 45,000 becomes your current year's earned income. Out of 45,000, how much have you received? 42,200. So that means 2,800 is what? Outstanding subscription for which year? This year. Outstanding is 2,800. Did you understand? Whereas आगे क्या दिया है? Subscription for 4-5 are still in arrears from 18 members at the beginning of the year. स्टार्ट में 1800 था, रिपीट करके दिया है. स्टार्ट में 1800 ही था, हमें पता है स्टार्ट में 1800 था, जिसमें से 800 मिला है, 1000 अभी भी मिलना बाकी है. बात समझ आई? मूविंग अहेड. 20% एंट्रेंस फीस एंड 30% मेंबरशिप फीस हो गया आपका. स्टेशनरी स्टॉक ऑन 31st March 06 was 1700 and 1405 was 1000. 1405 तो किया हुआ है, ऊपर था 1000. अब उस पे 1600 ऐड होगा. नहीं 1700 1700 क्या है? कौन सा है? 31st March 06 क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक क्या करना? माइनस फ्रॉम स्टेशनरी एंड करंट ईयर एसेट. ओपनिंग ऐड, क्लोजिंग सब्ट्रैक्ट. बात समझ आई? Then 5% depreciation needs to be provided on buildings, that is less from asset and expenditure. Sorted up? All of you put dots now. Current year subscription पे एक dot. 2 डॉट ना. Current year पे क्यों? लास्ट ईयर वाले पे भी है. लास्ट ईयर का भी स्टिल इन अरियर है. दो अलग अलग है. वो इधर पे भी ऐड हो रहा है ना सर. हाँ तो इधर पे भी 2 डॉट है. एसेट में थोड़ी डॉट डालते हो. एसेट में किसको ऐड करोगे? अलग ही दिखता है. सब्सक्रिप्शन इनकम वाले पे डॉट और लास्ट ईयर वाले पे डॉट. लास्ट ईयर वाले पे क्योंकि लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में सर लास्ट ईयर मध्ये 1000 હતા. 700 पे 800 पे केला आणि 1000 पे नत केला. ही आ ईयर ना एसेट માં આવશે. इनकम एक्सपेंडिचर માં नहीं આવે. वो तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है. लास्ट ईयर ऑलरेडी ऐड हो चुका है. समझ में आया? सो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 1 डॉट, लास्ट ईयर 1 डॉट. करंट ईयर 1 डॉट, लास्ट ईयर 1 डॉट. उसके बाद कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग नीचे मिलेगा. बिल्डिंग पे एक डॉट. बिल्डिंग नीचे मिलेगा. वापस ऊपर जाना. एंट्रेंस फीस और मेंबरशिप फीस पे एक एक डॉट. एंट्रेंस फीस और मेंबरशिप फीस पे एक एक डॉट. ब्रेकअप दिया है उसका. और आपका स्टेशनरी पे 2 डॉट. स्टेशनरी परचेज ना. स्टेशनरी परचेज पे 2 डॉट. काय को 2 डॉट? ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है. मिला? सर 1700 प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंड का डोनेशन पे 2 डॉट. प्राइसेस पे डालो या डोनेशन पे डालो, 2 डॉट्स आएंगे. बाद 2 डॉट्स आएंगे. मिला? अब क्योंकि डोनेशन ऐड करना है और एक्सपेंस माइनस करना है. मिला? अभी 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी का नोट बनाओ. पहला स्टेप इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. मुझे बताओ कितने टाइम का वैल्यू कैलकुलेट? 20,000 का 10% फॉर 12 मंथ, क्योंकि फर्स्ट डे को ही लिया हुआ है तो 1000 होता है. हैव यू रिसीव्ड एनीथिंग? चेक. कितना मिला है? चेक करो. 500 मिला है ना? सर 2000 है ना. 1500 मिला है. 2000 में से 1500 मिला है तो 500 क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग. बताओ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या करोगे?
add to interest or assets में add to investment. So put a dot on investments and put a dot on interest or securities. Put a dot on investments and one dot on security. बताओ how many balance sheets? Single balance sheet or double? Single balance sheet because we are having capital fund. So, हाँ start बोलो. स्टेशनरी स्टॉकમાં જે સ્ટોક ઓન 31/3/2006 છે એડ થશે ને 06 वालों माइनस અને 05 वालों ऐड. क्योंकि 05 वाला ओपनिंग है ना, 06 वाला क्लोजिंग है. क्लोजिंग मतलब ये साल का प्रीपेड और ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर का प्रीपेड. ये साल का बच गया वो माइनस लास्ट ईयर वाला ऐड. You have any doubt you ask? Start करो. Try to get it on your own. You have done so many sums in 12th standard. This is 12th standard level only. Come on, try. बोलो क्या था डाउट? स्टेशनरी पे लो डॉट है, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर एक, लास्ट ईयर एक, बिल्डिंग एक, एंट्रेंस फीस एक, लाइफ मेंबरशिप फीस एक, और आपका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन पे दो इंटरेस्ट एक, सिक्योरिटीज एक और डोनेशन पे दो. नियत ही नहीं है. તો જે વર્નિયર સ્ટોક છે એ ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચરમાં સબટ્રેક્ટ કરવાના ક્લોઝિંગ સ્ટોક स्टॉक का सेकंड इफेक्ट जाएगा ना, ओपनिंग लास्ट ईयर ऐसे क्लोजिंग करंट ईयर. स्टेशनरी स्टॉक स्टेशनरी में ओपनिंग है, क्लोजिंग माइनस. सेकंड इफेक्ट ऑफ ओपनिंग इज लास्ट ईयर ऐसे, क्लोजिंग इज करंट ईयर. अच्छा ओके तो क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर प्रीपेड है ना यार, दो प्रीपेड है. अरे तेरा पेमेंट में जो स्टेशनरी है ना उतना तूने पैसा दिया है. ओपनिंग मतलब क्या, लास्ट ईयर पैसा दिया था, एक्सपेंस बिलोंग्स टू दिस ईयर. वो ऐड तो लास्ट ईयर का प्रीपेड हो तो वो ऐड है लास्ट ईयर एसेट. और क्लोजिंग मतलब क्या, इस साल का बच गया वो माइनस और करंट ईयर एसेट. प्रीपेड एक्सपेंस का है ना, दो इफेक्ट. तो वो 1000 रुपए में ऐड होगा जो 1700 है वो इधर पे आता है एसेट में 1000 पे नहीं, 1000 ओपनिंग है, वही 1000 रिपीट किया है नीचे. ठीक है तो एसेट में 1700 आएगा. ये साल 1700, लास्ट ईयर 1000. हाँ ये साल 1700 आएगा ना. ये साल 1700 आए, लास्ट ईयर 1000 है. हाँ बोलो. भाई टोटल 6300 है वो.
सरप्लस क्या बोल रहे हो? यार मैं कैलकुलेट नहीं कर दो पहले आगे किनकी वजह से थोड़ा लग गया प्राइस आपको पता मला थैंक यू सो मच हेलो ब्रज एसेट्स में बे आउटस्टैंडिंग एक 2800 અને એક 1000 हो गया सब टाइम। अच्छा 15 मिनट से ज्यादा मिलेगा नहीं है इधर, बोर्ड्स में 30 मिनट है, इधर सब कैलकुलेटर है आपके पास। विशाल सर स्टेशनरी खाली क्लोजिंग स्टॉक एसेट में खाली क्लोजिंग स्टॉक एसेट ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर ऐसे भी आपने बनावट कर क्लोजिंग दिस ईयर।
Total 2 आता रहेगा फिर भी सीए एग्जाम में योर स्पीड विल मैटर. ओके, कॅपिटल मध्ये मायनस असेल हे घेतला पण नाही माइनस कैपिटल आएगा वो सब नेगेटिव चलेगा इधर चलेगा सीए में, उधर नहीं चलेगा. सीए एग्जाम में चलेगा. किस चीज का 66,300. हाँ How much? 7,100 कैपिटल फंड टोटल 197,400. Check.
Please be quiet. आयुष हाँ छोड़ दो वो हमेशा तो आयुष आप तो आप फटाफट चलो नेक्स्ट सॉन्ग. हो गया ये वाला. All of you take sum number 7. Seventh sum. मुझे देख के बताओ. एक करेक्शन करना. करेक्शन कर लो एक 7 सम में. पहला लाइन पे 2 कैश का कट करके 2 कैपिटल लिख दो. अब ये सब है ना, अगर आपको सिर्फ कैपिटल लिखो. अभी ध्यान से पढ़ो. डॉक्टर नरेंद्र कमेंस प्रैक्टिस. कमेंस मतलब क्या है, उसका फर्स्ट ईयर है. A similar sum we did in 12th standard also, and I told you this was asked twice in boards, and the height is the same sum has been asked twice in the CA exams also. बहुत इजी सम है, बट पता नहीं क्या प्यार है इससे. ये सोल प्रोप्राइटरी एनपीओ. मैंने आपको बोला था, पता है वो डॉक्टर प्रकाश बाबा हमने का एग्जांपल दिया था. सोल प्रोप्राइटर है बट एनपीओ चलाता है. ओके, सिंगल पर्सन. दैट्स व्हाई वी डोंट राइट कैपिटल फंड, वी राइट कैपिटल. इट्स लाइक योर 11th स्टैंडर्ड फाइनल अकाउंट्स जो अभी आपने सीए में भी किया है. सोल प्रोप्राइटरी. Start with furniture. Will you have any opening balance sheet or opening capital fund? It is 0. Start with furniture. Where do you put it? Assets. Equipments. Assets. Drugs. expense. It's a clinic. Doctor है वो. Drugs are expenses. Okay, drugs, medicines always expensive. Salaries are expense. Rent expense. Conveyance expense. Stationery expense. Lighting expense. Periodicals expense. Drawings minus from capital. Balance carried out. Current year asset. Opening capital है वो. To capital. Opening capital मतलब ये इंट्रोड्यूस हुआ है. Liability दिख रहा है 10,000. लास्ट ईयर से नहीं आएगा, अभी डाला है उसने. इंट्रोड्यूस हुआ है. लास्ट ईयर है ही नहीं, डील है. विजिट्स. डॉक्टर है तो विजिट्स क्या होगा इसकी? इनकम. सन्ड्री रिसीट्स इनकम. फर्स्ट वन 200 वेयर टू बी रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ विजिट्स. आउटस्टैंडिंग विजिट्स क्या करना है? ऐड टू विजिट्स एंड एसेट्स. Add to visits and assets. Please be quick. Unpaid salaries are 200. Outstanding salary. Add to salaries and liability. 60% of the conveyance fees is for private purpose. That's drawing. So what are the two effects of that? Less from conveyance, and instead of adding to drawings, what you can do? Subtract from capital. Less from conveyance and less from capital. Did you understand? Hello. Then value of drugs on hand was estimated at 1,000 rupees. Closing stock. No, minus from drugs and add to assets. अभी गया. Minus from drugs and assets. Got that? Hello. Depreciate furniture and equipments by 10% each. क्या करना है? Less from assets and expenditure. Sorted? Hello. अच्छा dots डाल दो. Visits पे एक dot. Put 1 dot on visits. 1 dot on salaries. 1 dot on visits, 1 dot on salaries. Conveyance पे एक dot और capital पे एक dot. Why conveyance पे dot? वो 60%. क्या लिखना है उधर? -60% में drawing.
और इधर ऐड ड्राइंग्स ब्रैकेट में प्राइवेट कन्वेंस या ऐसा कुछ लिख सकते हो. ओके, देन कैपिटल से माइनस और कन्वेंस में से भी माइनस लिखा. देन ड्रग्स पे डॉट, एक डॉट ड्रग्स पे, एक फर्नीचर पे और एक इक्विपमेंट पे. एक ड्रग्स, एक फर्नीचर, एक इक्विपमेंट. मैक्सिमम 10 मिनट्स, आइडियली 7 मिनट्स. ओके, स्टार्ट. 7 मिनट में प्रॉब्लम होना चाहिए. मैक्स टू मैक्स 10 मिनट, 10 मिनट ज्यादा ही है. 7 मिनट्स में होना चाहिए. 4-12 तक होना चाहिए बराबर. लोग किधर गए? तीर्थन, हर्षवर्धन, विसर्जन. वो खा रहे हैं और अंशा हर्षवर्धन बाहर है. विसर्जन कल से बाहर है क्या? कल भी नहीं हाँ, आया. कल से बाहर. बसंत भाई पूरा बॉम्बे का देखने गए. अरे वो लोग आउटडोर के लिए नहीं गए, वो लोग आउटडोर था. कहाँ गए? लोनावला. कितना लोग गए? 6-7 लोग. दगड़े को भी भूखा रहे. हाँ. आठ 8,300 पर टैली થયું. 9,300. કઈ લાજ લે? 9,300 है. કઈ દઉં? डेप सरप्लस टू આવ્યું. हाँ सरप्लस टू આવ્યું. 3895. हाँ. So 9 out है outer column. 9 outer column. 8,100 આવે છે. Drawing 4375 and 420. हाँ. 10,000. Calculation of. एक हर्षवर्धन, अंश, विनय गाला, तत्व, हाँ, ऋतु 8,100 આવે છે. और रोजन में. सीट. क्या सिर्फ? 10,000 कैसा है? 3895 और एक minus 4795. अरे 3,895 जमानो 2,895 लाइक 3,895 9,300 जो है टैली आओ. Thank you sir. Sir, we are educated sir. तो नहीं दे भाई, कुछ ना बाहर ही नहीं निकल. आपने देखा देखो सपने देखना अच्छी बात है, मगर सपनों के लिए सोते रहना अच्छी बात नहीं है.
सपने देखना अच्छी बात है, मगर सपनों के लिए सोते रहना अच्छी बात नहीं है। साउथ इंडियन मोटिवेटर, एक छोटा बच्चा हिंदी में बोलने का ट्राई करता है, बहुत मजा आता है। नेक्स्ट सॉन्ग प्लीज। इसके लिए I'm so sorry. you have done fine. Yes. No exo divide. Outer वाला no exo. चलो हो गया टैली। आम्हाला कवर झालं नाईट आउट अरे वा Done. सर તમે 3 to 4:30 રાખવાના હતા ને ક્લાસ કાલે તમે લખેલા હતા। Come on. हो रहा है टैली। हेलो चलो ऑल ऑफ यू टेक 19th sum now स्टार मार्क करना वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम 19th sum दिस इज ऑल अभी तक स्टार्टर ही चल रहा है अपना 12th का रिवीजन सॉर्ट ऑफ थिंग ओके 19th sum following accounting information is available for the year ended 2009-2010 for a cricket club. Nila, 2009-10. Now this question was asked in the paper also and NM का प्रीलियम में आया हुआ पेपर है 12th स्टैंडर्ड. Okay? Yeah, the same question. NM प्रीलियम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखो दिमाग रहेगा तो मैनेजेबल है, हमने किया हुआ भी है क्लास में ऐसा। अभी इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है, so do you need to make it? Every item of opening balance sheet will become what? Last year का adjustment. Is it clear? Start with the receipt payment account first. Bank overdraft, first thing first. Two next or one? Just one. Opening balance over. Salaries, expense. Electricity charges, expense. Rent and taxes, expense. Printing and stationery, expense. Entertainment expense, expense. Balance of cash and bank assets. Opening balance of cash, last year asset. There are 4 subscriptions given to you. What is the current year out of the 4? 9-10. Focus on that. Where you will put 9-10? 9-10 is income for sure, right? Okay, what about 10-11? This year's liability. Will you subtract? No, why? Should. तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, बराबर। अच्छा, प्रीवियस सम का आंसर आया 9300 टैली एंड 3895 सरप्लस। अच्छा, अभी आगे देखो। Subscription 9-10 is current year and 10-11 is pre-receipt. So just one effect liability. मिला? अभी
8 9 तो लास्ट ईयर का हुआ, करंट ईयर लास्ट ईयर एसेट। व्हाट अबाउट 7 8? वो भी लास्ट ईयर एसेट, याद है? ये भी किया था। लास्ट ईयर का हो तो भी लास्ट ईयर एसेट, लास्ट टू लास्ट ईयर का हो तो भी लास्ट ईयर एसेट, लास्ट टू लास्ट ईयर का हो तो भी लास्ट ईयर एसेट। इज दिस क्लियर? हेलो। लिसन नाउ, वैसे ही सुनो ध्यान से, नेक्स्ट ईयर का है तो ये साल का लायबिलिटी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर का है तो भी ये साल का लायबिलिटी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर का है तो भी ये साल का लायबिलिटी। बात समझ में आई? तो पिछले कितने भी साल का, लास्ट ईयर से ही आने वाला है ये साल के रिसीट में, और ये साल जो भी एक्स्ट्रा आया है वो पहले तो करंट ईयर लायबिलिटी में ही जाएगा, बाद में वहां से जो साल का इनकम है उस साल में एडजस्ट होते जाएगा। समझ में आया? अभी सुनो, वेरीफाई करो। 500 रुपए 8 9 का मिला है 2000 और ऊपर कितना है? 2500 है, मतलब क्या है? 500 स्टिल इन अरियर, तो हो जाएगा करंट ईयर एसेट। 8 9 का स्टिल इन अरियर, समझा? वैसे ही 7 8 का 1800 मिला है, ऊपर भी 1800 था, तो कुछ नहीं तो कुछ नहीं होगा, नथिंग इज स्टिल इन खाली अरियर। 500 अरियर खाली 500 इधर दिखेगा, करंट ईयर बैलेंस शीट मिला। ऑलराइट, डोनेशंस के बारे में पढ़ो क्या? बिल्डिंग फंड हाँ, तो ऐड टू बिल्डिंग फंड, लायबिलिटी, एंटरटेनमेंट रिसीट्स आर व्हाट? रिसीट इनकम, एंट्रेंस फीस के बारे में पढ़ो, कैपिटलाइज मतलब ऐड टू कैपिटल फंड। पहले सीधा नीचे मत देखना एडजस्टमेंट के लिए, ऊपर लास्ट ईयर का बैलेंस शीट, वहां से पकड़ने का लास्ट ईयर का एडजस्टमेंट। लैंड, LOI, CY, sports material. What are sports material in this problem? Asset or expense? Why the hell are you taking depreciation? You remember debris या sale दिया है तो asset, otherwise expense. समझा? Hello. So clear cut. It is not depreciation on stock. It is depreciation on sports material. 12.5% मिला. So here they are asset, LOI, CY, SPD मिला. कैश इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन अभी डिस्कस किया है, दिखा? ये बाजू आ जाओ, कैपिटल फंड LYL CYL, बिल्डिंग फंड LYL CYL, उसमें डोनेशन ऐड। अभी गम्मत, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 10-11, ध्यान से पढ़ो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 10-11 लायबिलिटी में, वो प्री रिसीव्ड है। कौन सा प्री रिसीव्ड है? इज इट लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड? मतलब इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर, सो वी विल ऐड। ध्यान से पढ़ो, साल कौन सा पढ़ो, साल कौन सा है? अपना साल कौन सा? करंट ईयर। ये सब में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, ध्यान से पढ़ो। लायबिलिटी में सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव फॉर द ईयर 10-11, इसका मतलब क्या है कि लास्ट ईयर आपको इस साल का नहीं, नेक्स्ट ईयर का पैसा मिल चुका है। कोई ऐसा ट्रेड है जिसने 2 साल एडवांस में सब्सक्रिप्शन दे दिया है। लास्ट ईयर यू गॉट द मनी फॉर नॉट दिस ईयर बट नेक्स्ट ईयर। इफ इट वर ऑफ दिस ईयर देन इट वुड हैव बीन लास्ट ईयर्स लायबिलिटी एंड ऐड। बट इसका दो इफेक्ट क्या होगा? प्री रिसीव तो है, लेकिन 2 साल पहले का प्री रिसीव लास्ट ईयर के लायबिलिटी में पड़ा हुआ, बस लास्ट ईयर लायबिलिटी वन इफेक्ट। करंट ईयर लायबिलिटी, करंट ईयर लायबिलिटी। वाई करंट ईयर लायबिलिटी? क्योंकि ये लास्ट ईयर का भी एडवांस था, अभी भी एडवांस ही है। ये कब ऐड होएगा इनकम में? नेक्स्ट ईयर। तो 2100 रुपया था सर टोटल। हाँ, टोटल 1000 प्लस 1100 2100 हो जाए। ओके, सुनो अभी और एक चीज, लास्ट ईयर आपको 1000 कितना 1100 मिला हुआ है। अच्छा, ये साल भी 1000 मिला हुआ है। क्या वो 1100 1000 इंक्लूडेड है कि अलग है? अलग ऑब्वियसली अलग है, क्योंकि लास्ट ईयर 1100 कैश आ चुका है, ये साल नया 1000 रुपया कैश आया है, तो टोटल प्री रिसीव कितना जाएगा? 2100। लॉजिक समझा? गया दिमाग में? तो पिछले साल का रिसीट में 1100 मिला था, वो प्री रिसीव था।
माइनस करके लायबिलिटी में डाला है। अब ये साल भी वो लायबिलिटी में ही पड़ा रहेगा, नेक्स्ट ईयर वो इनकम में ऐड होगा, समझा? हेलो, तो लिखो वो 1100 का इफेक्ट LYL CY इनकम में ऐड नहीं करना है। इनकम में कब ऐड करोगे? इनकम में कब ऐड करते? अगर वो 9-10 का हो, 9-10 का होता तो ऐड हो जाए। समझ में आया? चलो, खाली आंसर ढूंढने के पीछे भागो मत, समझो उसको। एक अलग एडजस्टमेंट आ जाएगा ना, सब साइड पे रहेगा। देन डोनेशन इज रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड, नीचे वाला एडजस्टमेंट किया हमने। एंट्रेंस फीस नीड्स टू बी कैपिटलाइज्ड, आउटस्टैंडिंग रेंट इज 250, क्या करेगा? ऐड टू रेंट एंड लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 9-10 इज 1500, कौन सा आउटस्टैंडिंग है? करंट ईयर क्या करने का? ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट्स। And the last one is depreciation, less from sports material and expense। डॉट्स डाल दो। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन पे एक डॉट, लास्ट ईयर पे एक डॉट, करंट ईयर एक डॉट, लास्ट ईयर एक डॉट, या रेंट एंड रेट्स पे एक, एंट्रेंस फीस पे एक, डोनेशन पे एक। रेंट एंड रेट्स एक, एंट्रेंस फीस एक, डोनेशन एक। रेंट एंड रेट्स एक, एंट्रेंस फीस एक, डोनेशन एक। स्पोर्ट्स मटेरियल पे एक, स्पोर्ट्स मटेरियल पे, बस खुद से करो पूरा। स्पोर्ट्स मटेरियल पे 10 मिनट में खत्म करो। 10 यू कैन शो प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन दोनों 10-11, प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन 2010। हाँ, यू कैन राइट 1000 + 1100, 1000 + 1100 ब्रैकेट में दिखा दो 2100, ठीक है? दोनों नेक्स्ट ईयर का ब्रैकेट में 1000 + 1100 सीधा बाहर 2100। री रिसीव्ड का बात समझ में आया सबको? हेलो, A surplus to I would 26,950. 27. री रिसीव माइनस बैंक बॉडी ओपनिंग लिखा, बिल्डिंग फंड लिखा 54,000। सरप्लस कितना है सर? मेरे को 26,950 आ। एक एग्जाम रेफरेंस कर। क्या किलो है वो? 26,950 डब्ल्यू लिखा? हाँ, कितना है? 4,000। क्या किलो है वो? 26,950। 300। फिगर कॉपी करने में गड़बड़ की है। 300। रेंट एंड टैक्सेस किया, एंटरटेनमेंट 8,000 आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड टैक्सेस ऐड किया। 25,600 250। ये रहा 250 ऐड किधर किया? लिखा तो है 2,000। डायरेक्टली नहीं लिखा, ऐड करके। व्हाट इज द सरप्लस? 27,650। 27। नीचे टोटल लिखा है। 75,300। ये राइट शुरू कहाँ पे करवा दे एक सेकंड। 27,650 आई हुई। मैं 2,000 नहीं हूँ, 275 अलग अलग दिला दूँ। What's your surplus?
27650. 27650 surplus. Tallies on 163. 1,63,000. 1,63,000 it should tally. Direct 2100 bracket में 1000 प्लस कराना. ये दोनों नेक्स्ट ईयर का ही है. चलो डन. नहीं एक और 5 बजे. अच्छा कल आपको हॉलीडे है ना कॉलेज में, तो डबल लेक्चर है आपका. 5 to 7 अकाउंट्स है और 7:15 to 9 आपका मैथ. કેટલું અકાઉન્ટ્સ ऑल द बेस्ट. छुट्टी नहीं है. फ्राइडे में छुट्टी नहीं है, फ्राइडे रेगुलर ही है, कल एक्स्ट्रा है. फ्राइडे में छुट्टी नहीं है. ये सुना था वो हॉलीडेज की वजह से. ऊपर से तुम्हारा बोर्ड एग्जाम जल्दी आ गया है. ये एग्जाम जून का मई में आ गया, महीना खा गया. बोर्ड जल्दी होगा, सीए के लिए टाइम चालू. 10 दिन बोर्ड जल्दी. हाँ तो बस 10 ही दिन हुआ है. क्यों ये का 1 महीना प्रीपोन हुआ है, तो 20 दिन गया तुम्हारा. मैंने सोचा ट्रिप भी कैंसिल कर दिया. कैंसिल मतलब डेट ही नहीं जम रहा है, ऐसा बोला है. अभी लेके चलो. 2 दिन तो जाना है. ये तो करना ही नहीं है. 2 दिन में क्या चाहिए, माइंड फ्रेश हो जाएगा. फ्रेश ही है मेरा माइंड. कल 5:15 to 7 accounts, 7:15 to 9. गांडू. ये मैं तब से जब भी अकाउंट मैच करने के लिए से तो लोग चलो हो गया सबका. और अच्छा कल एब्सेंट बंद में ना खतरनाक सम करवाने वाला इंटरव्यू है जो 12th का नहीं है. आज तो पापा पगली चल रहा है एकदम. 12th स्टैंडर्ड का सम आ रहा है, इसके लिए कल पता चलेगा रियल एनपीओ, दैट इज सीए वाला एनपीओ व्हिच इज नॉट देयर इन 12th स्टैंडर्ड. 16 सम. किसी को प्रॉब्लम है कुछ तो अभी बोलो मेरे को. अरे जाबक का ही है कल. जुलूस लेके क्लास में होता था. जुलूस ले हुए में ये लोचो तो वो लोग से तो अच्छा दूर है. हाँ तो दो मेरे को माइक दो. चलो silence now, quiet. अरे भाई चलो हो गया, सबका बाप हो गया. तुम सम नंबर 16 all of you take फटाफट.
16 इज अ मॉड्यूल सम, ओके, रिस्पेक्ट, यही सम आएगा बोर्ड्स में आपका, ओके, आएगा तो सीधा 10 मार्क। एकदम ध्यान से सुनना। आई डिस्कस द प्रॉब्लम गाइस, क्वाइट थोड़ा अलग है, ध्यान दो। स्पोर्ट्स राइटर्स क्लब इज द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016। स्टार्ट विद पहले बताओ कैपिटल फंड है कि नहीं है? नॉट देयर, मतलब डबल बैलेंस शीट ऑब्वियसली। अभी बाद में ड्रॉ करना। सैलरीज आर व्हाट? एक्सपेंस। रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। लाइब्रेरी बुक्स एसेट। बुक्स आर ऑलवेज एसेट, रिमेंबर दैट। उसमें मैंने दिया भी है मैसेज में, आज मैं वापस रीशेयर कर देता हूँ इस ग्रुप में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एनपीओ में। बुक्स, इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स आर ऑलवेज एसेट्स। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंस। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स कम ऑन एसेट्स। बैलेंस कैरीड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एसेट। ओपनिंग कैश LY लास्ट ईयर एसेट। सब्सक्रिप्शन शुद्ध है क्या अशुद्ध है? अशुद्ध है, मतलब सब करना पड़ेगा प्लस माइनस। आर यू लिसनिंग? So entire subscription is income. Miscellaneous income is what? Income. Interest on FD is income. Cut to adjustment. Salary is outstanding 15 भी है 16 भी है। 16 का क्या करने का? Add and liability। 15 का क्या करने का? Minus and last year liability, बराबर। Outstanding rent and electricity current year क्या करने का? Add and liability। Last year क्या करने का? 864। सर 15 लास्ट ईयर 50 लास्ट ईयर से 864 क्या करने का? माइनस सैलरी आउटस्टैंडिंग 2016 का 170 ऐड और लायबिलिटी 710 क्या करने का? माइनस है लास्ट ईयर लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी सेम 973 क्या करने का? ऐड एंड लायबिलिटी। 864 क्या करने का? माइनस है लास्ट ईयर लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग मैगजीन एंड न्यूज़पेपर सेम 340 क्या करने का? करंट ईयर ऐड एंड लायबिलिटी। लास्ट ईयर का 226 माइनस एंड लास्ट ईयर लायबिलिटी। एफडी विद बैंक शुरू में भी 20 एंड में भी 20। LY CY। इंटरेस्ट अक्रूड देयरऑन। इंटरेस्ट अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। मुझे बताओ करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करने का? ऐड एंड एसेट। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस एंड लास्ट ईयर एसेट। इज दिस क्लियर? देन सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। करंट ईयर रिसीवेबल क्या करने का? ऐड एंड एसेट। लास्ट ईयर रिसीवेबल क्या करने का? माइनस एंड लास्ट ईयर। अच्छा, माइनस करना है कि नहीं करना है? क्यों? अशुद्ध है, मिलावटी है तो माइनस होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट, हाँ सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री में, हाँ सन्ड्री में प्रीपेड एक्सपेंस और सन्ड्री। बताओ करंट ईयर 620 क्या करोगे? माइनस एंड एसेट। लास्ट ईयर का 417 क्या करने का? ऐड एंड लास्ट ईयर एसेट। मिला? Is this clear? फर्नीचर, ध्यान से देखिए फर्नीचर, इसमें यही सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है एसेट का। फर्नीचर लास्ट ईयर में 9600 था, लेके आ तो करंट ईयर में फिर एसपीडी करते हो। सेल है क्या फर्नीचर का? चेक करो। परचेज है। डेप्री के बारे में बड़ा कुछ दिया है। क्लोजिंग वैल्यूज ऑफ फर्नीचर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टू बी डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग 10 and 20% depreciation inclusive of the additions if any during the year। समझा? मतलब एडिशन है तो उसको लेके डेप्री मारो, नहीं है तो डायरेक्टली मारो। फर्नीचर पे कितना टका है? 10% है, बराबर है। 9600 LY CY ना सेल है ना परचेज है, सिर्फ डेप्री है। सॉर्टेड। सिमिलरली स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या करना है? LY CY सेल है, सेल। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का परचेज है कितना है? हाँ, तो लास्ट ईयर का 5 लेख नहीं 7200 लाओ, उसमें 1000 ऐड करो, 8200। डेप्री 20% है, मिला? टोटल पे आएगा 8200 पे 20%, 1640। इज दिस क्लियर? देन यू हैव लाइब्रेरी बुक्स, ये भी LY CY परचेज है 1000, 5 और 1 हुआ 6000। सेल तो है नहीं। डेप्री है क्या? डेप्री तो नहीं है, तो क्लोजिंग वैल्यू। सो 750 का डेप्री, एसपीडी मिला। अब एक हिडन एडजस्टमेंट, ध्यान से पढ़ो। 10% इन्वेस्टमेंट, एंड में भी 20 शुरू में भी 20, तो कितना होता है इंटरेस्ट? 2000। चेक करो कितना मिला है? 2000 मिला है।
पर उसमें दो एडजस्टमेंट है, ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 500 लेस आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर 500, तो वापस कितना होता है 2000 ही होता है। तो कुछ हिडन विडन करना है कि नहीं करना है? कुछ करने की जरूरत एफडी करके चेंज होता, ये करके अमाउंट चेंज होता, आउटर कॉलम में 2000 होना चाहिए क्योंकि 20,000 का इन्वेस्टमेंट है, 10% के हिसाब से ऑन इनकम प्लस 500 माइनस 500 होगा इसलिए ना, अगर सपोज कुछ अलग होता हो वही मैं बोल रहा हूँ। तो आउटर कॉलम में 2000 ही होना चाहिए, तो अगर वो 2100 है तो 100 प्री रिसीव है तो माइनस करता समझा? इसमें कुछ नहीं होगा, इधर 2000 ही आ रहा है, 2000 इनर कॉलम प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर फिर भी 2000 है, तो नथिंग हिडन। So last year में outstanding एफडी एलवाई सीवाई आउटर कॉलम, एफडी एलवाई सीवाई आउटर कॉलम। So last year में LIC भी यहाँ थी minus plus कर हाँ डॉट्स डालना है, सैलरीज 2 डॉट्स, रेंटल इलेक्ट्रिसिटी 2 डॉट्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर 2 डॉट्स, सैलरी 2, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 2, मैगजीन्स पे 2। एफडी पे आएगा कुछ डॉट? क्यों, कुछ हिडन है? एलवाई सीवाई एफडी नॉर्मल, इंटरेस्ट का भी अलग से एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट और एफडी पे 2 डॉट, क्या को प्लस माइनस करंट ईयर लास्ट ईयर मिला। सब्सक्रिप्शन पे 2 डॉट, सन्ड्री एक्सपेंस पे 2 डॉट, सब्सक्रिप्शन 2, सन्ड्री एक्सपेंस 2, फर्नीचर नीचे मिलेगा उस पे 1, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 2, लाइब्रेरी बुक्स पे 2, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 2, लाइब्रेरी बुक्स 2, फर्नीचर 1। ये समय ना 10 से 12 मिनट मैक्स। फर्नीचर 1, इक्विपमेंट 2, लाइब्रेरी बुक्स 2। શું સર 10 से 12 મિનિટ કેટલું બધું કરવા हाँ એટલું બધું કરવાનું છે, 10 से 12 મિનિટ ही टाइम है, इज्जत से करो। 2010 में क्या है वो आउटस्टैंडिंग है सर, ये साल आएगा कहीं तो कुछ देखो आपको 2000 मिला है, उसमें एक्चुअली 500 लास्ट ईयर का रिसीवेबल तो हटाओ, तो ये साल का 1500 ही मिला है, और फिर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड हुआ तब जाके 2000। ये साइकिल ऐसे ही चल रहा है इसका। नेक्स्ट ईयर वापस 500 माइनस होएगा, 500 ऐड होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का साल और अपना फाइनेंशियल ईयर कोइंसाइड नहीं हो रहा होगा, रिसीवेबल दिख रहा होगा 3 महीने का। चलो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पे 500 वो अलग से ही रखना है ना, ऐसे अलग। हां इंटरेस्ट वो आप ऐड कर सकते हो इसमें, एफडी का ही है, एफडी का ही है वो, इंटरेस्ट अप्रूव्ड दे रहा हूं, एफडी में ही ऐड करने का है। तो अब लागू ना अलग, अरे अलग मतलब रिटर्न नहीं है, कुछ अलग भी चलेगा, एफडी में ऐड किया तो भी चलेगा, नहीं चलेगा, दोनों एडजस्टमेंट दिखाना है, प्लस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, दोनों दिखाना है। डॉट्स किए हैं सबको, फर्नीचर 1, इक्विपमेंट 2, स्पोर्ट्स अपना लास्ट में, लाइब्रेरी बुक्स 2। 10 से 12 मिनट, चेक योर स्पीड। करूँ सॉल्व बोर्ड पे? जब रहा है इफेक्ट्स तो नॉर्मल है सब, एसपीडी तो आता है, लास्ट ईयर करंट ईयर एसपीडी, एलवाईएस સર ફિક્સ ડિપોઝિટ ની એક જ અહીંયા ખાલી 20000 આવશે ને ફિક્સ ડિપોઝિટ તો એમાં ઇન્ટરેસ્ટ કઈ આ સપ્લાય ના કરી તો બી ચાલે, અગર બંને 500 एफडी में तो आने लगते हैं, કહું છું આજે બંને 500 જો ડાયરેક્ટલી નલિફાઈ કરી અગર ઇન્ટરેસ્ટ એની એન્ટ્રી ના કરી તો ચાલે। ना ना अमाउंट कोइंसिडेंटली सेम है, नो मतलब ये थोड़ी ना एडजस्टमेंट नहीं करती। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर भाई से भाई बैग लेके जा चल।
मॉड्यूल्स और एकदम अच्छे से सन्ड्री एक्सपेंस का प्रीपेड एक्सपेंस है। लास्ट ईयर करंट ईयर दोनों प्रीपेड અને બંને વાયર થાય ને સર ના લાસ્ટ યર એડ થાય કરંટ યર પ્રીપેડ માઈનસ माइनस 3 सब में 3 बार कर रहे हैं Coincidentally, the amount is same. If it was different, you would have shown it. સર મિસેલેનિયસ ઇન્કમ માં ઇન્ક્લુડ वो ऐड करो तो भी चलेगा, अलग दिखाओ तो भी चलेगा। 30,000 plus 500, 20,000. એ 43,980 એસેટ ટોટલ આવે છે લાસ્ટ યર નો ના તો cash ની cash 48286 cash ને 48,800 બરાબર
कैपिटल फंड तो है 47,000. ओए ब्रज कैपिटल फंड 47,000. अबे डेफिसिट आवे છે 2668 2888 288 deficit 455 288 is deficit. टैली कितना बोलते हो? 45595. लायबिलिटीज बोल. आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, Outstanding maximum. Maximum. Capital fund minus deficit. कैपिटल फंड 47,000. Minus 288. 44,112. हाँ. 170, 973 and 340. 45,595. 45,595. Thank you, sir. Sir. Assets पे NY CY SPD. सातशो નો ફરક વિસલ कोणा फरक आहे? सातशो નો ફરક Miscellaneous to prepaid expenses registered books पर revenue એટલે સાતશો નો ફરક આવે but don't every back बीस हजार का एफडी बिल 20,000 गर्मी आ रही है सर बस ए सर फटाफट होमवर्क डिस्कस कर ले करा કોને થઈ ગયું આજે માટે થઈ ગયું હોમવર્ક આપે છે हाँ दो तीन गणपति है एक ईस्ट वेस्ट के ब्रिज के स्टार्ट में एक और एक गणपति है एक घाट को बचा राजा और फिर राइट में भावेश्वर का राजा आज फुल जाम होगा घाट पर
और जैसे विक्रांत विक्रांत के गणपति निकलेगा तिलक नगर के गणपति निकलेंगे, विक्रांत के एमजी रोड से 4 गणपति निकलेंगे। हो गया आउटस्टैंडिंग दोनों 500 है ना करंट ईयर आउटस्टैंडिंग वो ऐड हो रहा है और लास्ट ईयर का भी था तो वो माइनस और लास्ट ईयर अच्छा वो हेडर है सब्सक्रिप्शन के लिए सही 500 करंट ईयर 500 लास्ट अमाउंट सेम इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है वो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट अलग है इसके लिए डन घाट को बच्चा राजा निकल रहे ये साइड से जाते हैं अपना इधर से बैक इधर करते हैं ना मोस्टली तो जू ही जाते वन शॉट वन घाट को बच्चा राजा नो विसर्जन जू होईच ना હવે આટલા મોટા ગણપતિ લોકો થોડી પવઈ લેવા કે કઈ કરશે ये अभी इको फ्रेंडली बनाते हैं कि अभी पीओपी का ही चल रहा है पीओपी का पीओपी चलो कितना आ रहा है सरप्लस 288 डेफिसिट 45595 लास्ट सब होमवर्क डिस्कस कर रहा हूँ देखो हो रहा है टैली एक रुपया नहीं आ रहा है 45595 चलो listen now question 9th one is for homework. I've just done this similar sum in 12th standard if you remember. You just need to make income and expenditure account, okay? देखो only income and expenditure account. Mark fast 9th sum. Salaries, expense, rent, expense. एक एडजस्टमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग है, देखना ध्यान से. Salaries, expense, 9. Salaries expense, rent expense, electricity expense, postage and stationery expense, insurance premium is expense, general expense, part payment on account of new furniture. What is that? Asset. Hilal asset. Okay. Balance at bank asset. Opening balance LY. लेकिन बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं. एंट्रेंस फीस के बारे में पढ़ो क्या दिया. Not to be capitalized income. अमाउंट थोड़े नीचे हो गए हैं. 1000 rupees is entrance fees. Subscription 6, 7, 8. What is the current year? 7 का किधर जाएगा? Income. 8 का अभी क्यों मिला? Pre-receipt. Liability. Will you subtract? No. Should they? Should. 06 का कहाँ जाएगा? Last year asset. Will you subtract? No. Should. Sale of investment. अच्छा. Sale value है ना? Investment का 7,500 है. नीचे हो गया अमाउंट. मिला? तो search for book value.
Well, second point, the cost of investment sold was 5. मिला 2500 का प्रॉफिट. इनकम में खाली प्रॉफिट दिखेगा और इन्वेस्टमेंट से क्या माइनस होएगा 5000. बुक वैल्यू. Got it? Hello. Got it. Then loan taken from Krishna Swami, that is liability. मिला 2000 का लोन है, 2000 का लोन इज लाइबिलिटी. Then first adjustment is rent due outstanding. 07 is current year. current year का 360 क्या करेगा? Add and liability. last year का क्या करेगा? 180 minus and last year liability. electricity outstanding. current year का क्या करेगा? 200 add and liability. last year का 640 minus and last year liability. Are you listening? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग. ध्यान से देखना. करंट ईयर का 400 आउटस्टैंडिंग क्या करने का? एड एन एसेट. लास्ट ईयर का 250 कुछ करना है? वही दिया ऊपर का 250, नीचे भी 250. कुछ फिलिंग अरियर है? नहीं. मैंने सब्ट्रैक्ट नो, वो हो गया लास्ट ईयर एसेट. देखिए बेटा, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस. current year 70 prepaid minus an asset. last year 50 add an last year asset. once an item appears in receipt payment, just one it. Then second one, cost of investment sold was 5000. surplus is to be treated as income. that is income. मतलब आपका प्रॉफिट रिकॉर्ड करना है. बराबर है? एसेट में से बुक वैल्यू 5 माइनस होगा. फर्नीचर का सबसे इंपॉर्टेंट है, was valued at 3000 on 31st March 06. 06 मतलब Last year. LY सिवाय 3000. अच्छा, on 30th September 06, देवम, the club purchased additional new furniture of rupees 5000. The 30th September 06 is this year or last year? This year. 30th September 06 is this year. अभी इस साल का खरीदा है तो रिसीट पेमेंट में होना चाहिए. बट प्रॉब्लम है, ऊपर 4500 दिया, नीचे बोल रहे 5200 है. 700 इज क्रेडिटर फॉर फर्नीचर. याद आया कुछ? तो आपका एसेट में कितना ऐड होएगा? 5200 और 700 रुपया लायबिलिटी में जाएगा इस क्रेडिटर फॉर फर्नीचर. लेकिन वो इधर दिखने वाला. अब डेप्री मार रहे हैं 10 रुपए का. कैसा करने का? ऊपर वाले पे फुल ईयर 300 और एडिशन वाले पे 6 महीना. 6 महीना में 6 बोला, बीच में कोई 9 बोला. अक्टूबर है मिला. तो मैंने कुछ होगा. आपका 3000 रुपए फुल ईयर इज 300. एडिशन में डेप्री 4500 का मारोगे कि 5200? क्यों? एसेट कितने का? 5200. 700 रुपया लायबिलिटी है क्रेडिटर फॉर फर्नीचर. समझा? तो 5200 है तो टोटल डेप्री कितना आएगा? 300 प्लस 260 560. मिला. एंट्रेंस फीस आर नॉट टू बी कैपिटल. दैट इज इनकम. डॉट्स डाल दो. रेंट 2 डॉट्स. इलेक्ट्रिसिटी 2 डॉट्स. रेंट 2, इलेक्ट्रिसिटी 2, सब्सक्रिप्शन 1, इंश्योरेंस 2. सब्सक्रिप्शन 1 करंट ईयर पे, इंश्योरेंस 2 डॉट्स. या फर्नीचर 2 डॉट्स. इन्वेस्टमेंट 1, एंट्रेंस फीस है. फर्नीचर 2, इन्वेस्टमेंट 1, एंट्रेंस फीस है. अच्छा, अभी ये सब में पूछा है खाली इनकम एंड बट एज सीए स्टूडेंट अगर दिमाग लगा के अच्छे से सॉल्व करना है तो डबल बैलेंस शीट भी बनाओ. प्रैक्टिस के लिए मेक 2 बैलेंस शीट्स एंड टैली द सम. इज इट क्लियर? नहीं समझ में आया तो मेरे को मैसेज करो व्हाट्सएप पे. चलो बाय.